Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shoharto. In today's video, we are going to talk about access specifiers in Java. This video is being recorded according to the needs of class 10 ICSE students, but it can be watched by anyone as long as they are interested to learn Java and have a difficulty in understanding the topic. मैंने काफ़ी बार स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लोग ये एक्सेस स्पेसिफायर्स बिल्कुल समझ नहीं पाते. सब क्लासेस क्या है, क्लासेस क्या है, पैकेज क्या है, नथिंग एट ऑल. दे सिंपली मेमोराइज इट एंड मेमोराइजेशन में क्या होता है कि इधर का इधर हो जाता है एंड मतलब अगर जो बच्चे बहुत अच्छा मेमोराइज भी कर लेते हैं वो एक एग्जाम के बाद ये भूल जाते हैं. सो टुडे फाइनली आई एम गोइंग टू पुट एन एंड टू ऑल दिस एगनी एंड ये सब हम फालतू की बातें यहाँ वहाँ से ये देखना ये करना हटाने वाले हैं. कंसेप्चुअली इसको पोस्टमार्टम करके हर एक चीज को समझने वाले हैं. एंड आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर का क्या यूज है एंड कहाँ से वो डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स एक्सेसिबल है. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक. सबसे पहले मैं आपका बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ एंड मैं बता देता हूँ आपको कि क्यों एक्सेस स्पेसिफायर का टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ना बेसिक्स ही नहीं पता. सबसे पहले बेसिक्स में मैं आपको जो मेरा टॉपिक है एक्सेस स्पेसिफायर्स इन जावा. So point number one is, what do you mean by access specifier in Java? Access specifier, that means these are certain keywords in Java. ये keywords होते हैं, keywords are always in lower case. That will specify what access. That will specify the access levels. Clearly बोलना चाहूँ तो किसी भी डेटा मेंबर मतलब इंस्टेंस वेरिएबल या फिर मेंबर मेथड्स के सामने आप एक्सेस स्पेसिफायर अगर लगा दो तो दैट विल स्पेसिफाई कि ये डेटा मेंबर एंड मेंबर मेथड कहाँ से एक्सेसिबल है. सो एक्सेस स्पेसिफायर्स आर व्हाट? दे आर बेसिकली सर्टेन कीवर्ड्स दैट स्पेसिफाइज the parts of the program from where data members and member methods are accessible. Access specifier का एक दूसरा नाम है, that is visibility modifier. Visibility modifier. So access specifiers are also known as visibility modifiers because they can control the access levels of data members and member functions. They can control the regions from where data members and member functions are accessible. कि इस region से access होना चाहिए, इस region से access नहीं होना चाहिए, ये कुछ keywords से mention कर सकते हैं. कितने type of access specifiers है जावा में? There are basically three types: public, private and protected. Public, private and protected. Some people say there are four types of access specifier. Default. So default is not an access specifier. You should not write default in front of any data member or member method. If the programmer does not specify either public, private or protected, then by default the data member or member function is said to have default access. And the important point is default is not the same as public. Default is not the same as public. मुझे बहुत बुरा लगता है काफी बार टीचर्स क्या बोलते हैं कि अगर आप एक्सेस स्पेसिफायर को स्पेसिफाई नहीं करोगे, if you do not specify access specifier, then by default that data member is going to have public access. No, by default the data member is going to have default access. And default is not the same as public. So basically what are access specifiers? Access specifier are these three keywords: public, private and protected. ये तीन keywords आप किसके सामने लगा सकते हो? Either डेटा मेंबर के सामने लगा सकते हो और मेंबर फंक्शन या फिर मेंबर मेथड के सामने लगा सकते हो. एंड ये क्या स्पेसिफाई करेंगे? These keywords will specify or these keywords will modify the visibility of data members and member functions इन अ प्रोग्राम. कि प्रोग्राम के कौन से पार्ट से विजिबल है, प्रोग्राम के बाहर विजिबल है कि नहीं है, ये सारी चीजें ये कंट्रोल करेंगे. ठीक है. सो ये दोनों पॉइंट आप नोट डाउन कर लो एंड ये लिख लो कि अगर इफ
the programmer does not specify a public, private or protected, then by default the data member or member function is going to have default access, and default is not the same as public. Default is not the same as public. This is just an introduction. अब एक छोटा सा पॉइंट मैं समझाना चाहता हूँ, the concept of package. What do you mean by package? So in Java, a package is a collection of classes, subclasses, and there is something called interfaces. So we do not have interfaces in class 10. We are not discussing about that. So what is a package? A package is basically a collection of classes and subclasses. Classes and subclasses. Now what is the meaning of subclass? पैकेज का तो समझ में आ गया. आप कुछ 3-4 क्लासेस को अगर एक ग्रुप कर दो, इट्स अ लॉजिकल ग्रुप ऑफ क्लासेस एंड सम सब क्लासेस. सो व्हाट डू यू मीन बाय सब क्लास? कोई भी क्लास से अगर कोई दूसरा क्लास प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स इनहेरिट करेंगे यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा, देन दैट इज कॉल्ड द सब क्लास. यू नो दैट इन इनहेरिटेंस द सब क्लास इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट क्लास और सुपर क्लास. मैं एक एग्जांपल देके आपको सब क्लास समझाता हूँ. मान लीजिए आपके पास एक क्लास है, क्लास पेरेंट. क्लास पेरेंट, इस क्लास के अंदर क्या है? एक वेरिएबल है int x इज इक्वल टू 10, एक वेरिएबल है int y इज इक्वल टू 20. ठीक है. एक मेथड है void display. फिर ना, एंड यहाँ पे आप कर रहे हो SOPLN x प्लस कुछ स्पेस y. ये क्लास पेरेंट खत्म. आउटपुट क्या आएगा? x का वैल्यू है 10 एंड कुछ स्पेस y 10 एंड 20. अब एक दूसरा क्लास है, ये क्लास खत्म हो गया, एक दूसरा क्लास में लिख रहा हूँ. ये सेम प्रोग्राम में 2 क्लासेस हो सकते हैं. एक जावा प्रोग्राम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. क्लास चाइल्ड. अब मैं देखो एक लाइन लिख रहा हूँ, क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स, क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स parent. So this extends is a keyword in Java that is used to inherit from a class. So here class child extends parent. That means we are creating a class child that is inheriting all the properties and features from parent. That means properties and features means all the data members. These are data members. देखिए class child empty है बिल्कुल. मैं सब कुछ मिटा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ. देखिए class चाइल्ड मैंने क्या लिखा? एक्सटेंड्स पेरेंट. सो राइट नाउ व्हाट हैपेंस? द क्लास चाइल्ड इज एम्प्टी. पूरा कुछ तो नहीं है इसमें. क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ SOPLN x एंड y? कुछ लोग सोचेंगे कि भैया यहाँ पे तो x एंड y है ही नहीं, कैसे प्रिंट कर रहे हो? बट क्योंकि हमने एक्सटेंस कीवर्ड यूज कर दिया, तो जो डेटा मेंबर्स मतलब वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स पेरेंट के अंदर थे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे विजिबल है, यहाँ पे एक्सेसिबल है. एंड ये void डिस्प्ले मेथड भी यहाँ पे एक्सेसिबल है. ठीक है. सो दिस चाइल्ड कैन बी कॉल्ड अ सब क्लास एंड दिस पेरेंट कैन बी कॉल्ड अ सुपर क्लास. एंड हाउ कैन अ सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम अ सुपर क्लास? यूजिंग द एक्सटेंस कीवर्ड. ठीक है. दिस child class is inheriting from parent class. This is called subclass in Java. So subclass always extends, or subclass always inherits properties and features from the superclass, or child class always inherits properties and features from the parent class. ये मुझे एक थोड़ा सा आपको समझाना था, because I'll be using subclasses and this almost frequently. Okay. So we get this. We get what are access specifiers. We get what is a superclass. We get what is a subclass, and we also know what is a package. Now I'll take an example and I'll try to explain everything that public, private and protected में difference क्या है. उससे पहले और एक चीज मैं अगर समझाना चाहूँ, okay, पहले ना मैं पैकेज बना लेता हूँ. What is a package? A package is basically a group. You as a programmer can create your own package. मान लीजिए आपने एक पैकेज बनाया, कैसे बनाना है वो भूल जाओगे. एक पैकेज आप बना सकते हो, इस पैकेज में बहुत सारे क्लासेस को आप रख सकते हो. सो एक पैकेज है पैक 1. इस पैकेज में आपके पास एक क्लास है, क्लास ग्रैंडफादर. ठीक है. क्लास ग्रैंडफादर. एंड यहाँ पे एक क्लास है, क्लास स्टूडेंट. सो देयर आर 2 क्लासेस. दिस अनदर पैकेज.
दिस अनदर पैकेज, पैकेज 2। यहाँ पे आपके पास एक क्लास है, क्लास मान लेते हैं क्लास फादर, एंड मैं लिख रहा हूँ एक्सटेंस ग्रैंडफादर, क्लास फादर एक्सटेंस ग्रैंडफादर। मतलब दिस फादर इज अ सब क्लास ऑफ ग्रैंडफादर, है ना। फादर इज बेसिकली अ सब क्लास ऑफ ग्रैंडफादर। Okay, I can write another class some boy. So try to see the relation between all these classes. Class grandfather and class student. Is class student a subclass of grandfather? No, class student is not a subclass. Class student is not inheriting from grandfather. Okay, मान लीजिए यहाँ पे और एक क्लास में लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्लास child extends student, class child extends students. So child is a subclass of student, child is a subclass of student, whereas father is a subclass of grandfather. So we have two packages. Package 1 contains grandfather, student and child. Package 2 contains father and boy. What is the relation? In package 1 there is a class grandfather, and package 2 there is a class father. Father is a subclass of grandfather. So can I say grandfather and father, grandfather is a superclass, is a subclass. Are they in the same package or different package? Different package. So different package subclass. Father is a subclass of grandfather, but in the different package. Whereas in this case, child is a subclass of student, but in the same package. See, child is a subclass of student, and student and child both are in the same package. Father is a subclass of grandfather, grandfather and father are in the different package. ऐसा हो सकता है. Okay, so I am just grouping few classes. Now let us try to understand public, protected and private. Okay. Before that, I just want to mention कि अगर एक particular class है मेरा, I have a class test, or let's say I have a class grandfather. In this class I have three variables: public int x, private int y, and protected int z. And then I have two methods: void show and void display. यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ SOPLN x some space and y, and यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ SOPLN z. बोलो, इज दिस अलाउड और नॉट? क्या कोई एरर होगा या नहीं होगा? पब्लिक डेटा मेंबर क्या यहाँ पे एक्सेसिबल है एक्स वाई? अब बोलोगे हाँ। प्राइवेट क्या एक्सेसिबल है? अब ना बोल सकते हो, बिल्कुल नहीं, सारे एक्सेसिबल है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर क्लास में, इन अ पर्टिकुलर क्लास, whether the data member is public, private or protected doesn't matter. Data members of a class is accessible throughout the same class, whether it is public, private, protected, that absolutely doesn't matter. Variables of a class are accessible within the same class, irrespective of the fact whether they are public, private, protected. These things will work only outside the class. क्या हो रहा है कि क्लास के बाहर भी accessible है कि नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से मैं एक पॉइंट जो लिख रहा हूँ कि डेटा मेंबर्स of a class are accessible. Data members of a class are accessible within, are always accessible. Data members of a class are always accessible within the same class. Data members of a class are always accessible within the same class, irrespective of the fact whether they are public, private or protected. Irrespective of the fact whether they are public, private or protected. So this void show can access x, y and z, everything, because show is a member of grandfather and x, y, z is also the member of grandfather. So all these three data members
are accessible inside show as well as accessible inside display. So data members of a class are accessible within the same class, irrespective of the fact whether they are public, private, or protected. That doesn't matter. Within the same class, they are always accessible. Now let us talk about what do you mean by public access specifier. What do you mean by public access specifier? So if the data members or member functions of a class are declared public, पहली बात public किस किस के सामने लिखा जा सकता है? डेटा मेंबर्स के सामने लिखा जा सकता है, मेंबर फंक्शन के सामने लिखा जा सकता है एंड क्लास के सामने भी लिखा सकता है. तो हम तो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस की कॉमनली बात कर रहे हैं. सो इफ अ डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड पब्लिक देन दे आर एक्सेसिबल. कहां से? अगर मैं पब्लिक डिक्लेयर कर दूं उनको, सो दे आर एक्सेसिबल फ्रॉम एवरीवेयर. एवरीवेयर का मतलब कहां से एक्सेसिबल है? सो मेंबर्स ऑफ अ क्लास व्हिच आर डिक्लेयर्ड पब्लिक, ऐसा लिख रहा हूं. मेंबर्स मतलब डेटा मेंबर्स भी हो सकते हैं, मेंबर फंक्शन भी हो सकता है. मेंबर्स ऑफ अ क्लास दैट आर डिक्लेयर्ड पब्लिक आर एक्सेसिबल. नंबर 1, कहां से एक्सेसिबल है? मान लीजिए कि क्लास ग्रैंडफादर में मेरे पास एक वेरिएबल है पब्लिक int x. सो क्या ये पब्लिक int x, सो इज दिस x एक्सेसिबल इनसाइड ग्रैंडफादर? हाँ, सेम क्लास में तो एक्सेसिबल होगा ही. ग्रैंडफादर क्लास के अंदर एक वेरिएबल है पब्लिक int x. इज इट एक्सेसिबल इनसाइड ग्रैंडफादर? यस. इज इट एक्सेसिबल इनसाइड स्टूडेंट? स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट एंड ग्रैंडफादर सेम पैकेज में बिलोंग करते हैं. इज इट एक्सेसिबल? यस. क्या एक्स चाइल्ड के अंदर एक्सेसिबल है? यस, दे आर फ्रॉम द सेम पैकेज. ओह, दैट मींस इफ अ मेंबर इज डिक्लेयर्ड एज पब्लिक, दे आर एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल द क्लासेस इनसाइड द सेम पैकेज. ये ग्रैंडफादर क्लास के अंदर जैसे ही मैंने किसी डेटा मेंबर को पब्लिक डिक्लेयर कर दिया, तो ये डेटा मेंबर ग्रैंडफादर के अंदर तो एक्सेसिबल होगा ही. और डेटा मेंबर इज एक्सेसिबल इनसाइड द क्लास ऑलवेज. इज इट एक्सेसिबल इनसाइड स्टूडेंट? स्टूडेंट क्या है? Student is a class which is present inside the same package. Yes. Child is a subclass of grandfather. Yes. It doesn't matter it's a subclass. Is student a subclass of grandfather? No. Student is not extending from grandfather. Student में accessible है? Yes. So it is accessible inside a non-subclass of same package. Non-subclass of same package. Inside a subclass of same package. Yes. What about different package? हमें तो बस यही देखना है कि सेम पैकेज में कौन कौन एक्सेस कर सकता है, डिफरेंट पैकेज में कौन कौन एक्सेस कर सकता है. सो इफ अ मेंबर इज डिक्लेयर्ड पब्लिक, इट कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल द क्लासेस इनसाइड द सेम पैकेज एज वेल एज ऑल द क्लासेस इनसाइड डिफरेंट पैकेज. दैट्स इट. सो मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर डिक्लेयर्ड पब्लिक आर एक्सेसिबल बाय ऑल द क्लासेस इनसाइड सेम पैकेज. सो मेरे पास ग्रैंडफादर क्लास में मैंने एक डेटा मेंबर को पब्लिक कर दिया था. चाइल्ड जो कि ग्रैंडफादर का सब क्लास है वो तो एक्सेस कर ही सकता है. स्टूडेंट सब क्लास नहीं है फिर भी एक्सेस कर सकता है, सेम पैकेज में है. डिफरेंट पैकेज में हो तब भी एक्सेस कर सकता है. दैट मींस इट कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर. सो हम बस एनीवेयर नहीं लिखेंगे, हम मेंशन करेंगे इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम ऑल द क्लासेस इनसाइड द सेम पैकेज एज वेल एज ऑल द क्लासेस इनसाइड डिफरेंट पैकेज. ऑल द क्लासेस इनसाइड डिफरेंट पैकेज. यहाँ पे नोट डाउन कर लो ये एग्जांपल्स लेके कि ये जो x है एक्सेसिबल फ्रॉम स्टूडेंट, ऑल्दो स्टूडेंट इज नॉट अ सब क्लास. एक्सेसिबल फ्रॉम चाइल्ड इज अ सब क्लास. एक्सेसिबल फ्रॉम फादर इज अ क्लास ऑफ डिफरेंट पैकेज. ग्रैंडफादर पैकेज नंबर 1 में है, फादर पैकेज नंबर 2 पे है, फिर भी एक्सेस कर सकता है. बॉय इज नॉट अ सब क्लास ऑफ ग्रैंडफादर एज वेल एज इन डिफरेंट पैकेज, फिर भी एक्सेस कर सकता है. मेंबर्स ऑफ अ क्लास दैट डिक्लेयर्ड पब्लिक कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल द क्लासेस इनसाइड सेम पैकेज एंड ऑल द क्लासेस इनसाइड डिफरेंट पैकेज. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक तो बहुत इजी है. नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेट इज ऑल्सो वेरी इजी. प्राइवेट मेंबर्स ऑफ अ क्लास दैट आर डिक्लेयर्ड प्राइवेट. अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं, मेरे ग्रैंडफादर क्लास में मेरा एक वेरिएबल है प्राइवेट int x. सो कैन दिस x बी एक्सेस्ड इनसाइड ग्रैंडफादर? मैं देखता हूं क्या ग्रैंडफादर x को एक्सेस कर सकता है? बिल्कुल. क्या स्टूडेंट x को एक्सेस कर सकता है? नहीं. क्या चाइल्ड x को एक्सेस कर सकता है?
आप बोलोगे भैया चाइल्ड इज अ सब क्लास ऑफ ग्रैंडफादर, चाइल्ड इज अ सब क्लास ऑफ ग्रैंडफादर, सो चाइल्ड शुड be able to access whatever is there in the grandfather? No, because it was private. Because it was private. Try to understand this. A grandfather, girlfriend नहीं है, grandfather. Grandfather का कुछ बहुत ही private property है, तो वो grandfather का जो बेटा है father, वो भी नहीं कर, मेरे grandfather का बहुत कुछ private चीज है, तो वो मेरे पापा भी access नहीं कर पाएंगे. Although my father is a child of grandfather, and मैं भी नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, मेरे प्राइवेट चीज है, कोई और कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उसे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है. अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरा प्राइवेट चीज है, तो जितने भी क्लासेस है, इफ आई एम सेइंग इन माय फैमिली दिस इज पब्लिक, दिस मार्कर इज पब्लिक, सो ऑल द मेंबर्स इन माय फैमिली कैन एक्सेस इट, एंड ऑल द मेंबर्स इन समवन एल्सेस फैमिली दे विल कम, इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी. आई विल गिव देम ओके, यू कैन यूज द मार्कर ऑब्वियसली. So if a member of a class is declared public, it can be accessed by all the classes inside same package and all the classes inside different package. But if a data member or member function is declared private, it can only be accessed by the class in which it is defined. कोई और क्लास सेम पैकेज में हो, डिफरेंट पैकेज में हो, सब क्लास हो, कुछ नहीं, ये प्राइवेट है. सिर्फ जिस क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है उस क्लास से एक्सेस किया जा सकता है, दुनिया में किसी और क्लास से एक्सेस नहीं किया जा सकता है. सो प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास दैट इज डिक्लेयर्ड प्राइवेट लिख लेना, कैन बी एक्सेस्ड ओनली इनसाइड द क्लास इन विच इट इज डिफाइंड. तो एनालॉजी से समझा दो पब्लिक एंड प्राइवेट. मैं बोल रहा हूं कि मेरा मार्कर, दिस मार्कर इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, सो दिस मार्कर इफ इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी इट कैन बी एक्सेस्ड बाय माय फैमिली मेंबर्स, इट कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल द मेंबर्स इन माय फैमिली, एंड इट कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल द मेंबर्स इन समवन एल्सेस फैमिली, है ना. they can come and they can just request the mark, it's a public property, I can just hand it to them. But if there is something private, my driving license, it's a private thing, many people should not access it, right? So it can only be accessed inside the class in which it is defined. ठीक है? Okay. Third access specifier, protected. सबसे confusion होता है protected को लेके, protected and default को लेके. Public, members of a class that are declared public can be accessed by all the classes inside same package, all the classes inside different package. हमें तो बस देखना है कि सेम पैकेज के सारे क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, एंड डिफरेंट पैकेज के सारे क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं. प्राइवेट को क्या सेम पैकेज का सब क्लास एक्सेस कर सकता है? कैन अ प्राइवेट मेंबर या चाइल्ड इज अ सब क्लास ऑफ ग्रैंडफादर, कैन इट एक्सेस द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ ग्रैंडफादर? नो. तो बोलकर सब क्लास होने का क्या फायदा? सब क्लास का मतलब तो ग्रैंडफादर से चीजें बोरो करना चाहिए. नो, प्राइवेट है ना, वो सारी चीजें तो ना बोरो होंगे. माय फादर विल सर्टेनली गिव मी n number of things in inheritance, but the most ultimate private चीजें जो है मेरे पापा के, वो तो है ना मुझे देंगे. ये कैसी बात हो गई है? कोई इंडिविजुअलिस्टिक चीजें तो होना चाहिए. एनीवेज, प्रोटेक्टेड, द मेंबर्स ऑफ अ क्लास दैट आर डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड. अब देखना, अब इंटरेस्टिंग होने वाला है. मान ले क्लास ग्रैंडफादर में मेरे पास एक वेरिएबल था प्रोटेक्टेड INTX. सो यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास ग्रैंडफादर का एक क्या था मेरे पास, प्रोटेक्टेड INTX. कौन कौन इसे एक्सेस कर सकता है देखते हैं. ग्रैंडफादर का कोई प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन क्या स्टूडेंट एक्सेस कर सकता है? स्टूडेंट कौन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड ग्रैंडफादर? स्टूडेंट बिलोंग्स टू द सेम, मतलब स्टूडेंट ग्रैंडफादर के फैमिली में ही रहता है, बट इज स्टूडेंट इनहेरिटिंग फ्रॉम ग्रैंडफादर? Is student a subclass of grandfather? Student is not a subclass. Student is not a subclass. Student is not a subclass. तो क्या स्टूडेंट एक्सेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. सब क्लास से कोई रिलेशन नहीं है. भैया कंफ्यूज हो गया मैं. अगर किसी मेंबर को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर देते हैं, तो सेम पैकेज में जितने भी चीजें हैं, सेम पैकेज में जितने भी क्लासेस हैं, वो सारे तो एक्सेस कर ही सकते हैं. मान लेते हैं कि मेरे पास
कोई प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन है, प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन मतलब सपोज इन माय फैमिली आई हैव द डॉक्यूमेंट्स ऑफ माय लैंड, so who can access this protected information? My family members can access. Similarly, whenever a data member is declared as protected, this can be accessed by all the classes inside same package. All the classes inside same package can access. What about all different package? अगर different package में हुआ, अगर different package की बात करूँ, so only a sub class can access it. That means grandfather का protected information can student access? Oh, student तो same package में है, yes. Child same package, yes. Don't need to worry about subclass. Father, can father access? Oh, father is in different package, but father extends from grandfather. Father is in different package. Father is in different package, but father inherits. But father inherits from grandfather. Protected information inherit हो सकता है. Father can access. Boy is in different package and boy has no relation with grandfather. No. So the members of a class that are declared protected can be accessed by all the classes inside same package. बिल्कुल confusion नहीं होना चाहिए. Can be accessed by all the classes inside same package and can be only accessed by a subclass of different package. अगर different package से access करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ subclass होना चाहिए और कोई access नहीं कर सकता. ठीक है, ये लिख रहा हूँ. So the members of a class that are declared protected, आप एक बार लिख लो पहले, फिर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा. Members of a class that are declared protected can be accessed by all the classes inside same package, all the classes inside same package, and only by a subclass of different package. Only by a subclass of different. ग्रैंडफादर के प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन सेम पैकेज में जितने भी क्लास है वो सब क्लास हो या ना हो एक्सेस कर सकते हैं. बट अगर कोई और पैकेज से एक्सेस करना चाहते हैं दूसरा पैकेज से तो वो ग्रैंडफादर का सब क्लास होना चाहिए, अदरवाइज एक्सेस नहीं कर सकता. ठीक है, दिस इज प्रोटेक्टेड. लास्ट में समराइज कर दूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. लास्ट इज डिफॉल्ट एक्सेस. लास्ट इज डिफॉल्ट. अगर आप कुछ नहीं मेंशन करो, if no access specifier, see default is not access specifier, if no access specifier is mentioned by the programmer then by default it will have default access. मतलब आप बस अगर सिर्फ int x लिख दो, कुछ ना लिखो, तो कौन कौन एक्सेस कर सकते हैं x को? ग्रैंडफादर का x को कौन एक्सेस कर सकता है? स्टूडेंट, यस. सेम पैकेज का क्लास, यस. चाइल्ड, सेम पैकेज का क्लास है, यस. डिफरेंट पैकेज से कोई नहीं. सब क्लास ऑफ डिफरेंट पैकेज, नो. सब क्लास ऑफ डिफरेंट पैकेज, नो. सिर्फ प्रोटेक्टेड को कर सकता है. ओनली प्रोटेक्टेड कैन बी एक्सेस्ड. सो डिफॉल्ट, the members of a class that have no access specifier are said to have default access. लिख लेना दोनों, मैं नहीं लिख रहा हूँ. The members of a class that have no access specifier are said to have default access, and they can be accessed by all. They can be accessed only by all the classes inside same package. That's it. सिर्फ सेम पैकेज के क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं. क्लासेस ऑफ डिफरेंट पैकेज कैन नॉट एक्सेस इवन इफ दे आर सब क्लास. प्रोटेक्टेड के साथ क्या डिफरेंस है? प्रोटेक्टेड के साथ सेम क्लासेस, सेम पैकेज के क्लासेस तो एक्सेस कर सकते हैं एंड डिफरेंट पैकेज का सब क्लास एक्सेस कर सकता है. यहाँ पे क्या हुआ? ओनली बाय ऑल द क्लासेस इन द सेम पैकेज कैनॉट बी एक्सेस्ड, कैनॉट बी एक्सेस्ड बाय क्लासेस ऑफ different cannot be accessed by classes of different package. I hope ये आपको समझ में आ गया होगा. पहले इतना नोट कर लो, फिर हम फाइनली समराइज करते हैं. आई होप आपने नोट कर लिया होगा. अब एक टेबल बना लेते हैं, इन चीज़ों को समराइज कर लेते हैं. आप मुझे बताना, ठीक है? ओके. सो देयर आर 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स इन जावा. आप याद कैसे रखोगे अब मैं आपको बता रहा हूँ. एनालॉजी देखिए. पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट. नथिंग इज मेंशन इज डिफॉल्ट. पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट.
सबसे पहली बात, दो चीजें हैं, एक तो है सब क्लास सेम पैकेज, नॉन सब क्लास सेम पैकेज, सब क्लास डिफरेंट पैकेज, नॉन सब क्लास डिफरेंट पैकेज। तो यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ, हम यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। ठीक है, दिस इज द एक्सेस स्पेसिफायर। राइट, मैं थोड़ा सा स्लो समझा रहा हूँ कि इसी लेक्चर में आपको याद रह जाए। लेक्चर के लेंथ मेरे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लेक्चर के बाद ही हर एक चीज आपको याद हो जाए। अब इनसाइड द सेम क्लास, अगर किसी मेंबर को मैं पब्लिक कर दूं, प्राइवेट कर दूं, प्रोटेक्टेड कर दूं या फिर कुछ ना करूं, सेम क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल होगा ही। इफ एनी डेटा मेंबर हैज एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और नॉट एट ऑल, दिस डेटा मेंबर इज एक्सेसिबल इनसाइड द क्लास इन विच इट इज डिफाइंड। अगर मेरे पास एक क्लास है, क्लास टेस्ट, इसमें एक वेरिएबल है int x, नो एक्सेस स्पेसिफायर। एक वेरिएबल है पब्लिक y, पब्लिक int y। एक वेरिएबल है प्राइवेट int z। एक वेरिएबल है प्रोटेक्टेड int w or so on. So all these four variables, are they accessible inside the same class? Yes, inside the same class. It doesn't matter what kind of access specifier you used. All the data members are automatically accessed inside the class in which they are defined. Inside the class they are always accessible. So inside same class, public data members are accessible, protected are accessible. सबको ना ऐसा लगता है कि प्राइवेट, सो इनसाइड द सेम क्लास एक्सेसिबल नहीं है। सेम क्लास के अंदर, जिस क्लास में हमने उसे डिफाइन किया है, वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो या कुछ ना हो, हमेशा एक्सेसिबल है सेम क्लास के अंदर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये ऐसी बात होगी कि मेरे इस रूम में मेरे कुछ पब्लिक चीजें, अब एकदम एग्जांपल से समझना, सेम क्लास का मतलब, मेरे इस रूम में मेरे कुछ पब्लिक चीजें हैं। पब्लिक चीजें मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स हर कोई एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मार्कर। इन दिस रूम दिस इज द मार्कर, it's a public property. I can access this. My sister, my mother, father, everyone can access this. If a relative is coming and they are requesting for this marker, I can give it to them. Anyone can access. Now in this room, there is a private property. I have something private. So in this room, everyone can. In this room only I am present, so I can obviously access it. है ना? In this room there is something protected. I can obviously access it. So ये room जो है, ये मेरा room है. इस रूम में कुछ पब्लिक हो, प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो या कुछ ना हो, मैं तो एक्सेस कर ही सकता हूं ना। सिमिलरली इन अ क्लास, द डेटा मेंबर्स, whether they are public, private, protected, inside the same class, they are inside the same class you can access. So data members of a class are always accessible inside the class in which they are defined, whether they are public, private, protected or whatsoever, है ना। So ये मैं और एक बार स्ट्रेस डालने के लिए लिख देता हूं कि data members of a class are always accessible inside the class in which they are defined or declared, है ना, irrespective of whatever access specifier they have, irrespective of whatever access specifier they have. Okay, now inside the same package, if I talk about inside the same package, कौन से accessible है, कौन से accessible नहीं है। Public data members, if I am saying this marker is public, so this marker can be accessed inside the same class, मतलब मैं access कर सकता हूँ, हाँ। Can this marker be accessed inside the package in which the class belongs? Yes. Can this marker be accessed outside the package from a different package? Yes. So the members of a class that are declared public can be accessed by all the classes inside same package and all the classes inside different package. That means everyone can access it. This has global access. This has global access. What is the meaning of global access? All the classes can access it. All the classes will. All the classes inside same package. All the classes inside same package
as well as different package. What about, so same package, public allowed, same package protected, yes, the data members that are declared protected can be accessed inside the same package. All the classes inside the same package can access it. Default, yes, all the classes inside the same package. तो देखिए सेम क्लास में तो सब कुछ किया जा सकता है. सेम पैकेज, दैट मीन्स एक पैकेज में बहुत सारे क्लास होते हैं, एक पैकेज में बहुत सारे क्लासेस होते हैं. अब public members accessible by all the classes inside same package, obviously. Protected members accessible by all the classes inside same package. ठीक है. सो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, पहले ना एक एक करके लिख लेते हैं. पब्लिक में क्या लिख सकता हूँ मैं, पब्लिक में आई कैन राइट दे आर एक्सेसिबल बाय ऑल द क्लासेस इनसाइड सेम पैकेज. प्रोटेक्टेड में भी accessible by all the classes inside same package. What about default? Default भी all the classes inside same package. मतलब सेम पैकेज के क्लासेस तो हमेशा एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक को. अगर मेरा कोई, अब समझिए, सेम पैकेज का मतलब मेरा ये रूम, सॉरी रूम मतलब तो मेरा प्राइवेट है. सेम पैकेज का मतलब दिस हाउस, मेरा जो घर है. मेरे घर में मेरा कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी, हाँ पब्लिक है वो तो, मेरे घर में क्यों, मेरे घर से बाहर भी कोई कर सकता है. मेरे घर में मेरा कोई पब्लिक प्रॉपर्टी, एवरीवन कैन एक्सेस. मेरे घर में कुछ प्रोटेक्टेड, मेरे घर का कागजात वगैरह, हाँ मेरे मम्मी पापा मेरे घर में जो है आई कैन शो इट टू देम. डिफॉल्ट कुछ नहीं बोला गया तो मैंने मम्मी को स्पेसिफिकली कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि मम्मी ये मत टच करना, शी कैन. बट मेरी कुछ प्राइवेट चीजें सेम पैकेज में, क्या मेरे मम्मी पापा सिस्टर, नो. आर यू गेटिंग इट? सो सेम क्लास कंपेयर इट टू योर रूम, है ना. सेम क्लास कंपेयर इट टू योर रूम. सो तुम्हारे रूम में तुम्हारा कुछ पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, यस यू कैन एक्सेस बिकॉज तुम ही तो हो तुम्हारे रूम में. ऐसा मान रहे कि तुम्हारे रूम पे सिर्फ तुम ही हो, कोई और नहीं आ सकता. सेम पैकेज मतलब योर हाउस. So, the members that are declared public can be accessed by all the classes in the same package. मेरे घर में मेरे पब्लिक चीजें सबको एक्सेस कर सकते हैं. मेरे घर में कुछ प्रोटेक्टेड चीजें सबको एक्सेस कर सकते हैं. मेरे घर में मैंने कुछ डिफॉल्ट चीजें सबको एक्सेस कर सकते हैं. मैंने कुछ नहीं बोला, सबको एक्सेस कर सकते हैं. सेम पैकेज. अब इसको मिटा रहा हूँ. अब डिफरेंट पैकेज की बात करें. अब डिफरेंट पैकेज में भी अगर डिफरेंट पैकेज हो गया तो सब क्लास हो सकता है या नॉन सब क्लास हो सकता है. ठीक है. डिफरेंट पैकेज बट सब क्लास है. जैसे देखा गया था कि ग्रैंडफादर एंड वो नीचे जो था एक फादर, ये दोनों अलग अलग पैकेज में थे बट सब क्लास है. एंड लास्ट पॉसिबिलिटी क्या होगा, डिफरेंट पैकेज नॉन सब क्लास है. सबसे पहले प्राइवेट चीजें तो सिर्फ और सिर्फ सेम क्लास में होगा, डिफरेंट पैकेज में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. अब पब्लिक अगर है तो वो तो हमेशा हो सकता है हर जगह. डिफरेंट पैकेज का सब क्लास है या डिफरेंट पैकेज का नॉन क्लास है, पब्लिक चीज है, हमेशा एक्सेसिबल है, कोई बुराई नहीं है. सो द मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर डिक्लेयर्ड पब्लिक आर एक्सेसिबल बाय ऑल द क्लासेस इन सेम पैकेज एंड ऑल द क्लासेस इनसाइड डिफरेंट पैकेज. अब डिफरेंट पैकेज में वो सब क्लास हो या नॉन सब क्लास हो, डजंट मैटर. नॉन सब क्लास मतलब जो इनहेरिट नहीं कर रहा है, सब क्लास मतलब जो इनहेरिट कर रहा है. ठीक है. एंड प्राइवेट तो कभी भी नहीं हो सकता. प्राइवेट सिर्फ ओनली इनसाइड द सेम क्लास. सो द मेंबर्स ऑफ अ क्लास दैट आर डिक्लेयर्ड प्राइवेट आर एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द सेम क्लास, ओनली इनसाइड द क्लास इन व्हिच दे आर डिफाइंड. सबसे अच्छा तो आप पब्लिक एंड प्राइवेट याद से रखते हो. द मेंबर्स ऑफ अ क्लास डिक्लेयर्ड पब्लिक कैन बी एक्सेस्ड बाय all the classes inside the same package, all the classes inside the different package. Private only inside the class in which they are defined, और कोई नहीं. अब सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चले जाना डिफॉल्ट में. डिफॉल्ट अगर हुआ तो सेम क्लास से तो हो ही सकता है, मैंने कुछ नहीं बोला, एंड सेम पैकेज में हो सकता है. मतलब मेरे घर में कुछ चीज है, मैंने स्पेसिफिकली डायरेक्शन नहीं दिया किसी को, तो मैं तो एक्सेस कर ही सकता हूँ. सेम क्लास में तो हो ही सकता है. मैं मम्मी शी कैन, बिकॉज आई डिड नॉट से मम्मी वो टच मत करना. बट कोई और आके थोड़ी ना टच कर सकता है बाहर से. मैंने जब कुछ नहीं बोला, सो अ रिलेटिव कैन नॉट कम एंड डायरेक्टली एक्सेस माय लैपटॉप, राइट.
Did I give him or her the permission? No. So अगर default हो गया, so the members of a class that have default access can only be accessed by only all the classes in the same package. Different package से access नहीं हो सकता default. Not from different package. अब प्रोटेक्टेड में इंटरेस्टिंग चीज देखना, सबसे इंटरेस्टेड प्रोटेक्टेड देखो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा. पब्लिक हमेशा, प्राइवेट ओनली इनसाइड द सेम क्लास, डिफॉल्ट ओनली इनसाइड द सेम पैकेज, डिफरेंट पैकेज सब क्लास, डिफरेंट पैकेज नॉन सब क्लास, नो. सबसे अच्छा प्रोटेक्टेड, द मेंबर्स ऑफ अ क्लास दैट आर प्रोटेक्टेड कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल द क्लासेस इनसाइड द सेम पैकेज. सेम पैकेज में तो हो ही सकता है. मेरे घर का प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन कौन सा, वो जो घर का जो डॉक्यूमेंट्स है, all the classes, all the members inside my house can show, and I can show it to my uncle, mama और को जो मेरे घर में नहीं रहता, but I trust them, है ना. So the members of a class are declared protected. Same class तो हो ही सकता है, all the classes inside the same package, all the classes inside the same package, and only by a different package से हो सकता है क्या? हाँ, only by a subclass, only by a subclass of different package. अगर डिफरेंट पैकेज से कर रहे हो तो सब क्लास होना चाहिए. प्रोटेक्टेड चीजें हैं, मैं किसी को दे रहा हूं तो आई शुड हैव अ ट्रस्ट ऑन देम. ओनली बाय अ सब क्लास ऑफ डिफरेंट पैकेज, एंड नॉन सब क्लास ऑफ डिफरेंट पैकेज तो कर नहीं सकता. सो दिस इज द थ्योरी जो आपको आईसीएससी में लिखना है. आईसीएससी में पूछा जाए पब्लिक मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल द क्लासेस इन द सेम पैकेज एंड ऑल द क्लासेस इन द डिफरेंट पैकेज. Private members can be accessed only inside the class in which they are defined. Protected can be accessed by all the classes inside same package and only by a subclass inside different package. खुद एक बार इसको देखो, टेबल बनाओ, इसको देखो, टेबल बनाओ. Default all the classes inside same package only, not from a different package. Different package से नहीं हो सकता. एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, लोगों का जो मिसकंसेप्शन है, मेरे स्कूल का टीचर भी when I was in class 10, he also had a misconception. वो क्या बोलते थे, he used to say कि अगर आपने कोई एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया, सो इट विल टेक पब्लिक एक्सेस. मेनी पीपल फील दैट पब्लिक एंड डिफॉल्ट आर सेम, बट आप एक बार मैच करके देखो. पब्लिक में सारे टिक है, डिफॉल्ट में सिर्फ 2 टिक है, प्रोटेक्टेड में 3 टिक है. सो विच टू आर सिमिलर, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड. व्हाट डू आई मीन टू से? व्हाट डू आई मीन टू से? आई मीन टू से दैट पब्लिक इज मोर लाइक प्रोटेक्टेड देन डिफॉल्ट. Public and protected have more similarities than compared to public and default, है ना. समझ रहे हो? प्रोटेक्टेड को डिफरेंट पैकेज सब क्लास भी एक्सेस कर सकता है, बट अगर आपने डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखा तो डिफरेंट क्लासेस सब क्लास एक्सेस नहीं कर सकता. सुन के थोड़ा सा उल्टा लगता है, सुन के लगता है कि भैया आपने गलत पढ़ाया है, ये इधर होगा ये इधर होगा. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही पढ़ाया है. दिस इज द कंसेप्ट. सुन के ऐसा लगता है कि प्रोटेक्टेड का थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी कम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है. प्रोटेक्टेड में डिफरेंट पैकेज इनसाइड सब क्लास. क्यों भैया प्रोटेक्टेड डिफरेंट क्लासेस सब क्लास? बिकॉज़ आई ट्रस्ट दैट इट्स अ डिफरेंट पैकेज से कोई क्लास एक्सेस कर रहा है, बट इट इज माय सब क्लास, सो आई एम ट्रस्टिंग देम. बट अगर मैंने कुछ नहीं लिखा है, देखो कंपाइलर का क्या साइकोलॉजी है. कंपाइलर बोल रहा है कि देखो इसने कुछ नहीं लिखा है तो मैं सब क्लास को एक्सेस दे दूंगा, फिर ये मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएगा. बट इसने प्रोटेक्टेड लिखा है तो मैं सब क्लास को एक्सेस दे सकता हूँ. समझ रहे हो? जैसे ऐसी बात है, अगर मैं कुछ प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन मेरे घर का कागजात शेयर करना चाहता हूँ तो मुझे विलिंगली करना पड़ेगा, है ना. मैं अपने मामा को दिखाना चाहता हूँ, मैं विलिंगली दिखाना पड़ेगा. तो प्रोटेक्टेड डिफरेंट पैकेज सब क्लास मुझे एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ेगा. माय रिलेटिव हाउसहोल्डर क्लोज कैनॉट कम एंड एंटर माय क्लोजर एंड टेक आउट माय पेपर्स, है ना. सो इसलिए जब कुछ नहीं बोला गया है तो सब क्लासेस बिल्कुल एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब डिफरेंट पैकेज से. आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज द थ्योरी. एंड प्रोटेक्टेड इज मोर लाइक, माने पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड हैव मोर सिमिलरिटीज कंपेयर्ड टू पब्लिक एंड डिफॉल्ट. ये भी आप कहीं पे नोट डाल के जा सकते हो. सो दिस इज द कंसेप्ट. आई होप मैंने पूरा एक्सेस स्पेसिफायर्स को पोस्टमार्टम किया, हर एक पॉइंट को आपको डिटेल में समझाया. वीडियो का लेंथ ऑल्दो ज्यादा है, बट दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू नीड टू वॉच. इसके बाद इस जिंदगी में तो एक्सेस स्पेसिफायर से आपको एक भी डाउट नहीं हो सकता. मैंने हर एक चीज आपको समझा दिया है. आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा. कोई डाउट है तो नीचे बता सकते हो, एंड आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे कंप्यूटर साइंस का कोई भी टॉपिक रिक्वेस्ट कर सकते हो जो आपको दिक्कत आ रहा है. आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट एज सुन एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर.